नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ईथर फॉर्मेशन, दैट इज़ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। यहाँ पर हम सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करेंगे विद अल्काइल हैलाइड एंड वी विल गेट अल्काइल अराइल ईथर. So this is primarily synthesis of ether reaction. So because phenols are more acidic than water, it is possible to generate a phenoxide ion in C2 using NaOH. So आपका phenol जो है उसके साथ हम treat करेंगे alkyl halide and in presence of NaOH we will get ether. Okay, now this thing you have to keep in mind that Rx must be primary or it can be methyl halide. So in Williamson synthesis, aryl halide cannot be used because of the low reactivity towards nucleophilic substitution reaction. तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज पैराक्रसॉल और इट इज़ 1 2 3 4 दैट इज़ 4 मिथाइल फिनॉल. तो इसको हम 4 मिथाइल फिनॉल, इसको अगर हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. ओके, सो यहाँ पर ये CH2CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा टू ऑक्सीजन. ओके, एंड दिस H will be removed with this Br. Okay, so we will get this way. We have benzene CH3 this side, OCH2 CH3. So this is our ethyl paratoluene ether. और एक एग्जाम्पल सिंपल देख लेते हैं ऑफ फिनॉल. सो फिनॉल हमने रिएक्ट किया है विद इथाइल ब्रोमाइड in presence of NaOH. Okay, so what product we will get? CH2 CH3 will be attached with this oxygen. So O CH2 CH3. So simple product we will get ethyl phenyl ether. So Williamson synthesis is a synthesis in which we will get ether. So phenol को हमने treat करना है with alkyl halide in presence of NaOH and we get ether. Next reaction is electrophilic aromatic substitution reaction. Because OH group powerful activating group है, जो incoming group होगा वो ऑर्थो पैरा पोजिशन में वो उसको डायरेक्ट करेगा. ओके, सो अगर हमने फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल. ओके, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल. अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करते हैं तो हमको मिलेगा पॉली नाइट्रेशन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ओके, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है तो पॉलीनाइट्रेशन रिएक्शन से हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट भी मिलेगा. देन वी हैव हैलोजिनेशन. तो अगर हमने ब्रोमीन के साथ फिनॉल को रिएक्ट करेंगे हम ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, that is a non-polar solvent. So we will get orthobromophenol and mixture of para-bromophenol. Okay, so अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन इन aqueous solvent, polar solvent, we will get product that is 2,4,6 tribromophenol. That is polyhalogenation. Next we will see sulfonation reaction. So we are treating phenol with H2SO4. At lower temperature we get ortho product, that is ortho hydroxy benzene sulfonic acid, and at higher temperature we will get parahydroxy benzene sulfonic acid. So at lower temperature reaction non-reversible है and we get ortho product, and at higher temperature reaction reversible है, so we are getting more stable para product.
Then we will see what is Friedel-Crafts alkylation. So in the Friedel-Crafts alkylation, phenol will react with the alkyl halide in presence of AlCl3, that is a catalyst, and we will get alkyl group. Okay, तो यहाँ पर जो आपका alkyl group है वो para position पे add हो जाएगा यहाँ पर. So phenol will react with tertiary butyl chloride, and on Friedel-Crafts alkylation हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना है CH3 thrice. So this is para tertiary butyl phenol. So this is para tertiary butyl phenol we are getting on Friedel-Crafts alkylation. This is one more simple example जहाँ पर हम लेंगे फिनॉल को हम ऐड करेंगे फिनॉल के साथ CH3Cl, that is मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो हमको अल्काइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल मिलेगा. और एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, दूसरा पैरा प्रोडक्ट है, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका पैराक्रेसॉल रहेगा. ओके, सो व्हेन यू ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल अगर हम देखेंगे विथ सिंपल मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको मिलेगा 4 मिथाइल फिनॉल प्लस 4 मिथाइल फिनॉल, मतलब ही आपका पैराक्रेसॉल, एंड दिस इज योर 2 मिथाइल फिनॉल, that is orthocresol. Okay, so on Friedel-Crafts alkylation, phenol will react with methyl chloride and we get a product of paracresol and orthocresol. Friedel-Crafts acylation की अगर बात करेंगे तो in case of phenol acylation जो है, so phenol will react with acid chloride, so R C double bond O Cl, तो हमको यहाँ पर O के साथ CrCO ग्रुप अटैच होगा. मतलब इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड एट C असाइलेशन नहीं फॉर्म होगा, ये आपको याद रखना है. इट विल बी O असाइलेशन. ओके, सो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ये पिकुलर रिएक्शन है. फिनॉल विल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये फिनॉलिक ईस्टर है, बट इट इज़ नॉट C असाइलेशन, इट इज़ O असाइलेशन. सो अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो फिनॉल वी विल रिएक्ट विथ CH3COCl, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड. सो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज योर फिनाइल एसिटेट. ओके, सो इट इज OCOCH3. ओके, सो दिस वे ये फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है जहाँ पर आप फिनॉल को ट्रीट करेंगे विथ एसिटाइल क्लोराइड एंड वी आर गेटिंग फिनॉलिक ईस्टर एंड दैट इज योर फिनाइल एसिटेट. ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सी असाइलेशन नहीं होता है. जो असाइलेशन हो रहा है इट इज़ टेकिंग प्लेस एट ऑक्सीजन. Okay, so it is O acylation and not at the carbon of the ring. C acylation is not taking place. What product we are getting is phenolic ester. Next हम बात करेंगे Fries rearrangement. So Fries rearrangement involves phenolic ester. Phenolic ester का conversion होता है into aryl hydroxyketones. Okay, phenolic esters, there is a rearrangement into aryl hydroxyketones में. ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं. फिनाइल एसिटेट. ओके, सो फिनाइल एसिटेट इज C6H5OCOCH3. तो यहाँ पर हम उसको ब्रेक कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड एक्वस HCl. ये जो ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा एंड पैरा पोजिशन पे. सो वी विल राइट हियर COCH3 एंड COCH3. दिस इज orthohydroxy phenyl acetate and this is parahydroxy phenyl acetate. So in the Fries rearrangement, this is a reaction which involves phenolic ester is rearranging into aryl hydroxyketone in presence of catalyst AlCl3. इसके बाद में नाइट्रोसेशन रिएक्शन. So phenol is reacting with HNO2 and you're getting
फिनॉल एंड पैरा पोजिशन पे NO ग्रुप ऐड हो जाएगा. सो दिस इज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल. ओके, अगर हम ऑर्थोक्रेसॉल ले रहे हैं तो ऑर्थोक्रेसॉल रिएक्टिंग विथ NaNO2 and HCl एंड NO ग्रुप ऐड हो जाएगा पैरा पोजिशन में. सो दिस इज, सो व्हेन यू आर टेकिंग ऑर्थोक्रेसॉल विथ HNO2, नाइट्रोसेशन में 4 नाइट्रोसो, ये प्रोडक्ट है आपका 4 नाइट्रोसो 2 मिथाइल फिनॉल, पैरा नाइट्रोसो 4 नाइट्रोसो 2 मिथाइल फिनॉल. Okay, this is nitrosation reaction. नेक्स्ट है कपलिंग विद द डाइजोनियम सॉल्ट. तो यहाँ पर हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और आपको मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट दैट इज़ योर अजो डाई. तो यहाँ पर जो N2 ये पूरा प्रोडक्ट है N2 बेंजीन. ओके, सो दैट विल बी एडेड टू द पैरा पोजिशन ऑफ दिस फिनॉल रिंग. सो ये आपका ऑर्थोक्रेसॉल है, उसके पैरा पोजिशन पे मतलब यहाँ पर N2 एंड डबल बॉन्ड एंड देन बेंजीन रिंग. यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज़ योर अजो डाई फॉर्मेशन हो रहा है. देन नेक्स्ट इज Kolbe reaction. This we have already discussed. Sodium phenoxide is reacting with carbon dioxide, that is carbonation of phenol is taking place, and at higher temperature you will get, at lower temperature you get ortho hydroxy sodium benzoate, and that will hydrolyze into corresponding acid. Okay, so Kolbe reaction, sodium phenoxide के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज़ करेंगे एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद हमको मिलेगा प्रोडक्ट विच इज़ सैलिसिलिक एसिड. ओके, सैलिसिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में OH और एडजेसेंट पोजीशन पे यू हैव COOH. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एंड देन वी हैव राइमर-टाइमर रिएक्शन. सो इसमें हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH at 70 degrees Celsius, and subsequent acidification will give us salicylaldehyde. Okay, so OH, adjacent to this you have the CHO group, that is your salicylaldehyde. और salicylaldehyde को हम easily oxidize कर सकते हैं to salicylic acid.